Hello students, I am Nisha Desai. Today I am going to teach you English subject of standard 11, chapter number 1st, that is Portrait of a Lady. The writer of this chapter is Khushwant Singh. In this chapter we will learn how did the lady look, who was she, how was the bonding between the writer and his grandmother, how did she take care of the writer, and how the relation take change in this at the last, that we will see in the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. Here, writer is talking about his grandmother. He is telling us here that his grandmother is also other people's grandmother. Like means she is old, or people told him that she was young once. But it is hard to believe for the writer because from last 20 years they both are together, and he means Khushwant Singh saw his grandmother like a old lady and wrinkled face, so he couldn't believe. It is hard to believe for him that his grandmother was young and pretty, and he had even husband also. Then after, writer is telling us about his grandfather. He is telling us that his grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece means जहाँ पे हम लोग मतलब वो आग जलाते हैं और उसके ऊपर का जो शेल्फ होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल पीस. जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ पे दे यूज फायर एंड उसके ऊपर का जो शेल्फ होता है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल पीस. एंड ही एक्सप्लेन द लुक ऑफ हिज ग्रैंडफादर हियर. He wore big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. Then writer told about his grandfather that he looked very old. He wore big turban. He is explaining his look here, his grandfather's look here, that he wore big turban and loose-fitting clothes, or he had a big white beard, and that beard was so long so it covered the most of the part of his chest. His means grandfather's chest, and he looked at least 100 years old. मतलब वो इतने ओल्ड दिखते थे कि वो एटलीस्ट 100 years के हो, ऐसा लगता था. He did not look a sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो क्या बोल रहे हैं? He is trying to tell us the short of a person means वो that he is not a that kind of person. तो उनका कोई वाइफ भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं. Why? Because he looked so old in the portrait or in the picture. So writer telling us इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि वो ऐसे पर्सन, मतलब ये ऐसे पर्सन नहीं है कि जिनकी कोई वाइफ या बच्चे भी हो सकते हैं. उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं बिकॉज ही इज़ सो ओल्ड. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज रिवॉल्टिंग, ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस द स्टोरी games she used to play as a child that seems quite absurd and undignified on her part, and we
treated it like the fable of the prophets she used to tell us. Then grandmother told him that the stories or the games which she used to play when she was a child. In her childhood, which stories she used to play, but writer couldn't believe. उसको ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ग्रैंड मदर उनको कोई स्टोरी बोल रही है, कोई स्टोरी सुनाती है, कोई फेरी टेल्स कैसी होती है, उनको ऐसा लगता था. अपसर्ड मीन्स समथिंग स्ट्रेंज. ही बिलीव्ड समथिंग, ही फील लाइक समथिंग स्ट्रेंज. और उनकी दादी कभी ब्यूटीफुल भी थी, यंग भी थी. दैट थॉट कम्प्लीटली रिवॉल्टिंग, ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स वो उनके लिए मुश्किल था. हार्ड टू बिलीव, रिवॉल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव. दैट थिंग एक्सेप्टेड is very difficult for the writer. She had always been short and fat and slightly bent. Here in this paragraph, writer is explaining, he is trying to tell us about the look of his grandmother. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. वो क्या बोल रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी दादी का लुक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो शॉर्ट है, फैट है, थोड़ी बैंड हो गई है बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ द एज. उनकी जो दादी थी वो थोड़ी बैंड हो गई थी. सो वो क्या बोल रहे हैं कि वो पहले से ही मतलब वो ऐसी ही है. आई सॉ हर लाइक दिस ओनली. और हर फेस इज कम्प्लीटली क्रिस क्रॉस. रिंकल्स वर देयर रनिंग हियर एवरीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर. एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स उनका जो फेस है, ओल्ड पीपल का फेस कैसे पूरा रिंकल्स वाला हो जाता है. तो वो वही बोल रहे हैं कि मेरी दादी थोड़ी फैट थी, शॉर्ट थी और स्लाइटली बैंड मीन्स वो थोड़ी रिस्ट में से थोड़ी बैंड हो चुकी थी बिकॉज वो ओल्ड थी इसीलिए. और उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और वो ऐसी ही है जैसे मैं उनको देखता आया हूँ. शी इज़ लाइक दिस ओनली, टेरिबली. और अब इससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो सकती है. ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. शी could never have been pretty but she was always beautiful. वो क्या बोल रहे हैं कि दादी 20 years से ऐसी ही है, इतनी ही ओल्ड है. नाउ अब इससे ज़्यादा तो वो कितनी ओल्ड होगी. शी नेवर बिन प्रिटी. वो कभी भी प्रिटी नहीं थी. बट येस शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. प्रिटी एंड ब्यूटीफुल बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स बट हियर प्रिटी describe the outer beauty of the person and beautiful describe the inner beauty of the person, soul beauty or we can say nature beauty. Explain here. So both words are similar but here use of these words are for the different things. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips continuously moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountainous, an expanse of pure white serenity, breathing peace एंड कंटेनमेंट. वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो बहुत मतलब शी हैड अ गुड नेचर. शी नेचर वाइज शी वॉज वेरी नाइस. देन शी राइटर इज टेलिंग अस दैट वो कैसी थी. हॉबबली मीन्स वॉक्ड इन अ ऑकवर्ड वे. ओल्ड पीपल कैसे चलते हैं, थोड़े ऑकवर्डली चलते हैं वो. सो क्या बोलते हैं, हॉबबली. तो वो थोड़ी ऑकवर्ड वे में चलती थी. वो कैसे टोटली मतलब कम्प्लीटली वाइट क्लोथ्स पहनते थे. उनका एक हैंड था वो कहाँ पे रहता था, उनकी रिस्ट पे रहता था. इफ़ यू हैव नोटिस एनी ओल्ड पीपल दे ऑलवेज कीप वन हैंड ऑन देयर वेस्ट बिकॉज टू बैलेंस देयर बॉडी. स्टूप मीन्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और
बैंड वन बॉडी, उनकी जो बॉडी बैंड हो चुकी है उसको बैलेंस करने के लिए वो क्या करती थी, अपना एक हैंड रिस्ट के ऊपर रखती थी और दूसरे हैंड में क्या रखती थी, बिट्स ऑफ हर रोसरी, रोसरी मीन्स हियर माला, बिट्स ऑफ रोसरी, और सिल्वर लॉक्स हर स्कैटल अनटाइटली, सिल्वर लॉक्स मीन्स ग्रे हेयर, हर वाइट हेयर, लॉक्स मीन्स हमारे जो हेयर की लटें होती है दैट, अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल पकड़ फेस मीन्स जिसके ऊपर शाइन नहीं थी, बिकॉज ऑफ एज, इफेक्ट ऑफ द एज, उनका जो फेस था उसके ऊपर का शाइनी जो ब्लश होता है वो कम हो चुका था, तो उनका ऐसे फेस के ऊपर उसके जो अनटाइडी हेयर थे वो यहाँ वहाँ आते जाते रहते थे, और उनके लिप्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे, अनऑडिबल इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो देख के पता चला, वी अंडरस्टैंड दैट शी वॉज स्पीकिंग समथिंग बट वॉट एक्चुअली दैट नॉट ऑडिबल, मतलब वो सुना ही नहीं देता था, और उनकी ऑलवेज प्रेयर, उनकी जो रोसरी उनके हाथ में रहती थी वो माला घुमाती रहती थी, और क्या करती थी, उनकी एक प्रेयर है जो वो हमेशा बोलती रहती थी। देन अगेन राइटर इज टेलिंग एस येस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बोलते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल थी, मेरी दादी ब्यूटीफुल थी, बट कैसी, वो जो माउंटेनियस कोई प्लेस होती है, बहुत स्नो वाला माउंटेनियस प्लेस पे कैसी पीस होती है, he compared her grandmother with this kind of peace, कि उसकी जो फेस है उसके ऊपर प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स काम फेस, उसका प्योर वाइट काम उनका नेचर था। he is telling us that. Now in this paragraph we will see the how was the routine of writer and his grandmother. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in a city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि ग्रैंड मदर और उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, देवर गुड फ्रेंड्स, और उनके जो पेरेंट्स थे वो जब सिटी में शिफ्ट हुए, एट दैट टाइम दे लेफ्ट राइटर विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज ओनली, वो डेली उनको उठाती थी, देन स्कूल के लिए रेडी करती थी, और उनकी जो मोनोटोनियस प्रेयर, उनकी जो प्रेयर थी रेगुलर प्रेयर, वो मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, मतलब मोनोटोनियसली वो उनकी जो प्रेयर थी वो गाती रहती थी जब वो राइटर को नहलाती थी, उनको ड्रेसअप करती थी या फिर रेडी करती थी स्कूल के लिए। और वो क्या सोचती थी, उनके माइंड में एक थॉट होता था कि ये जो प्रेयर वो गाती है दैट राइटर हैज़ ऑल्सो लर्न बाय हार्ट। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। देन she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वो क्या बोलते कि मैं वो प्रेयर सुनता था क्योंकि आई लव हर वॉइस, उनका आवाज़ मुझे पसंद था, बट मैंने कभी सीखने के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं की है। और उसके बाद क्या करती थी उनकी दादी, उनका बैग रेडी करती थी स्कूल के लिए। वो क्या करती थी, उनका जो अर्दन लैम्प होता है, अर्दन लैम्प मीन्स मेड ऑफ बेक्ड क्ले, बेक्ड क्ले होती है उससे एक बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अर्दन। और इंक पॉट वो देती थी, वो उनकी स्लेट जो होती थी उसको भी क्लीन कर देती थी, और रेड पेन उनको सब बंडल बना के उनके बैग में रख देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati, with a little butter and sugar sprayed on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वो उनका बैग पूरा रेडी कर देती थी, उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट में क्या देती थी, थिक स्टेल चपाटी, स्टेल मीन्स बासी चपाटी, विच इज़ नॉट लॉन्गर फ्रेश, जो फ्रेश नहीं होता है वैसा उसको क्या बोलते हैं स्टेल।
चपाती देती थी, उसके साथ क्या देती थी, बटर और शुगर। वो ब्रेकफास्ट में राइटर खा लेते थे, और फिर जो भी बची हुई सेवरल चपातीज जो होती थी, जो बची हुई चपातीज होती थी, वो क्या करती थी, वो अपने साथ ले लेती थी फॉर द विलेज डॉग्स। जो विलेज में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए वो चपाती जो बची हुई होती है वो ले लेती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the prayer, reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They follow us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. उसके बाद वो रेडी होके दोनों साथ में ही निकलते थे। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। विलेजेस में क्या होता है, स्कूल भी और टेम्पल दोनों साथ में ही होते हैं, तो दोनों ग्रैंड मदर एंड राइटर दोनों साथ में ही निकलते थे। दे वेंट टुगेदर। और जो प्रीस्ट था वहाँ का, वो क्या करता था, वो जो स्टूडेंट्स आते थे उनको प्रेयर भी मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे और अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे। वो द स्टूडेंट सिट इन साइड ऑफ वरांडा, और जो दादी थी वो कहाँ बैठी थी, बाहर की साइड पे बैठी थी, और वो अपनी प्रेयर करती थी। और उनकी जो भी स्क्रिप्चुअल्स, वो जो रिचुअल्स उनके जो होते हैं वो रीड करती थी, और स्टूडेंट्स अंदर प्रेयर और अल्फ़ाबेट्स लर्न करते थे। फिर उन दोनों का जब स्कूल ख़त्म हो जाए, दादी की प्रेयर ख़त्म हो जाए, तब वो दोनों साथ में वापस घर आते थे। उस टाइम उनको जो विलेज डॉग्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते थे, टेम्पल के डोर पे मिलते थे, और वो उनके साथ घर तक आते थे वापस। ग्राउंडलिंग मीन्स डॉग पर्टिकुलर आवाज़ करते हैं, उनकी टंग बाहर निकाल के जो आवाज़ वो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउलिंग। एंड दे फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज। जो दादी ने उनको चपाती दी होती है उनके लिए वो एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं। Where my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our relationship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. उसके बाद उनके जो पेरेंट्स सिटी में गए थे वो कंफर्टेबली वहाँ पे सेटल हो गए। देन दे कॉल्ड grandmother and the writer in the city, and that was a turning point of their relationship. Of whose relationship? Writer and his grandmother's relationship. That was a turning point of their relationship, because in village they all the time they both were living together. Grandmother went to school with the writer, but in city that is not possible. In city, writer went to the English medium school, and he went to school by the motor bus. और वहाँ पे कोई स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे। सो दादी क्या करती थी, वो कोर्ट यार्ड में बैठ के किसको, स्पैरोज को फीडिंग करवाती थी। सो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। वाई writer telling us like this, the turning point of our friendship that we will come to know. As the year rolled by, we saw less of each other. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, achievements of principles, the world being round, etc. उसके बाद भी बहुत दिनों तक दादी क्या करती थी, उनको सुबह उठाती थी, नहलाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। When writer came from the school, she asked some questions
वॉट योर टीचर टॉट यू एंड ऑल, जनरल क्वेश्चन सी आस्क्ड। और फिर राइटर उसको क्या बोलते थे, कुछ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए वो बोलते थे, जो थिंग्स उन्होंने पढ़ाई वो बोलती थी। देन लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, दैट इज ही टोल्ड हिज ग्रैंड मदर। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल्स एंड वॉज डिस्ट्रैक्ट दैट देर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड spirituals. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her music had lewd association. It was the monopoly of harlots or beggars and not meaning for gentle folk. She said nothing, but her silence means disapproval. She rarely talked to me after that. राइटर ने उनको बोला, उनके स्कूल में क्या पढ़ाते थे वो सब उन्होंने बोला, बट दादी को क्या लगता था, शी डिड नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। दादी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। वो क्या सोचती थी कि बच्चों को स्कूल में गॉड की थिंग्स पढ़ानी चाहिए, स्पिरिचुअल थिंग्स पढ़ानी चाहिए। और एक दिन राइटर ने क्या बोला कि उनके स्कूल में म्यूज़िक क्लास स्टार्ट हुआ, उनको म्यूज़िक लेसन्स देने वाले हैं। तो दादी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई उससे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। वाई? बिकॉज लेउड मीन्स द ऑब्सेंस। उनको ऐसा लगता था कि ये जो म्यूज़िक और वो सब चीज़ें वो कैसे लोगों की है, जो गरीब है उनके लिए है, जो भीख मांगते हैं, जो बेगर्स है उनके लिए। वो गाना गा के या सिंग सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक दे कैन अर्न मनी। ये जेंटल फॉक मीन्स जो पीपल अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। शी डिडंट से एनीथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूव। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं कि आप ये मत करो या एनीथिंग, बट वो साइलेंट हो गई। और उनके साइलेंट का मीनिंग क्या था? डिसअप्रूव। उसके बाद वो रेयरली राइटर के साथ बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seculation with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half an hour of the day of her. उसके बाद राइटर यूनिवर्सिटी चले गए फॉर द फर्दर स्टडीज़। और उसके बाद उनको क्या हुआ, उनका सेपरेट रूम मिल गया। और फिर तो जो भी उनकी फ्रेंडशिप की थोड़ी बहुत लिंक थी दैट ऑल्सो डिस्कनेक्ट, वो भी टूट गई। स्नैप मीन्स वो भी ख़त्म हो गई। फिर दादी क्या करती थी, उन्होंने एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद द रिलेशन। सेक्युलेशन मीन्स अवे फ्रॉम द पीपल। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन मीन्स हियर वो अब क्या करती थी, सब लोगों से ऑलमोस्ट दूर रहती थी। क्या करती थी? स्पिनिंग व्हील मीन्स एक व्हील आता है जिसके ऊपर हम कॉटन, मतलब उसको सर्कल घुमा के कॉटन बना सकते हैं, वैसा व्हील, चरखा बोलते हैं दैट। तो वो पूरे दिन अपने चरखे के साथ काम करती रहती थी फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग और नाइट। सिर्फ दोपहर में, आफ्टरनून में जब वो लंच लेती थी, खाना खाती थी, और उस टाइम जब स्पैरो को वो फीड करवाती थी, उसी आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए शी सेट इन द वरांडाज। वो क्या करती थी, ब्रेड के बहुत सारे पीसेस कट करती थी और
स्पैरोज को या बर्ड्स को डालती थी। बहुत 100 ऑफ बर्ड्स आर केम हियर एंड बेडलेम ऑफ द चिरपिंग, वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग। और बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे आ जाते थे, 1000 और 100 ऑफ बर्ड वी कैन सी हियर, लिटिल बर्ड्स। तो वो एक साथ सारे आके ची 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 करते, जो उनका जो आवाज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, चिरपिंग। सम केम टू परचेज, और जो बर्ड्स थे वो क्या करते थे, कुछ उनके लेग्स के पास आके बैठते थे, कुछ उनके शोल्डर के पार्ट्स आके बैठते थे, और सम सेट ऑन हर हेड। बट शी स्माइल बट नेवर शूट देम। शूट देम मीन्स, शूट मीन्स बर्ड्स को भगाने के लिए हम जो आवाज़ करते हैं शूट शूट, दैट इज़, वो कभी ऐसा करके उनको जाने के लिए नहीं बोलती थी। और दिस इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ हर होल डे। ये जो आधा घंटा होता था, हाफ आवर जो होता था उनका, वो पूरे डे का वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotions. उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद राइटर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडीज़। और उस टाइम उनको ऐसा लगा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपोज करेगी, उनको नहीं अच्छा लगेगा। बट शी कुडंट से एनीथिंग, बिकॉज वो 5 years के लिए जाने वाले थे स्टडीज़ के लिए, बट शी कुडंट से एनीथिंग। और यहाँ पर राइटर क्या बोलते हैं कि उनकी इतनी एज हो चुकी थी कि 5 years के बाद जब राइटर यहाँ पे आएंगे तो उनकी दादी जिंदा भी होगी या नहीं वो कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज शी ग्रोथ सो मच ओल्ड। बट दादी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कोई भी सेंटिमेंट्स मीन्स अपने इमोशंस, कोई भी उन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए। और वो उनको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए भी आई, बट उन्होंने अपने कोई भी इमोशंस शो नहीं किए। उन्होंने उनकी जो प्रेयर थी वो गाती रही। Her lips moved in a prayer, her mind was lost in a prayer, her fingers were busy telling the beats of the rosary silently. She kissed my forehead, and when I left, I cherished the mist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब वो जाने वाले थे तब उनकी दादी क्या कर रही थी, वो प्रेयर कर रही थी। एज़ यूजुअल उनके हाथ में उनकी रोसरी थी और वो प्रेयर कर रही थी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइटर के फोरहेड पे किस किया और उनको हक किया। तो राइटर को उस टाइम क्या लगा, परहैप्स दैट इज़ द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मीन्स उनकी दादी का और उनका ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, उनको ऐसा लगा। तो उनको ऐसा था कि 5 years के बाद जब वो आएंगे तब शायद उनकी दादी जिंदा भी ना हो। बट दैट वॉज नॉट सो फार। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाय हर एट द स्टेशन। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी स्लैप्ड मी ऑन हर आर्म्स, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, the happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. उसके बाद जब वो स्टडीज़ ख़त्म करके 5 years के बाद घर आए तब तो उन्होंने क्या, उनकी दादी ने उनको लेने के लिए आई, एंड देन उन्होंने उनको क्लैश का मीनिंग क्या होता है, टू टाइट होल्डी, मतलब उनको ज़ोर से हक किया। और उस टाइम उन्होंने अपनी दादी जो प्रेयर कर रही थी वो उनको सुनाई दे रही थी। और वो जिस दिन आए उस दिन भी उनका जो हाफ एन आवर का टाइम था वो जब स्पैरो को फीड करवाती थी, दैट शी हैज़ डन। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। She did not pray. She collected the women of the neighbor, got an old drum and started to singing. For several hours she thumped
the saggy skins of the dilapidated drum and sang the homecoming of warriors. We had to put her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. यहाँ पे फिर दादी ने क्या किया, जिस दिन राइटर घर पे आए उस दिन उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की. उन्होंने अपने जो नेबर्स थे उन सबको बुलाया और एक डैमेज ड्रम था पुराना जिसकी स्किन फटी हुई थी, वैसा ड्रम ले आए और कंटिन्यूसली उसको ज़ोर ज़ोर से बजाती रही और क्या गाती रही, वॉरियर्स, जो हमारे वॉरियर्स थे उनके सॉन्ग्स गाते रही. जो घर पे आए वापस घर पे उनके लिए वो ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा के सॉन्ग्स गाते रही. बी प्रेशियस मीन्स रिक्वेस्ट. परस्यूट का मीनिंग क्या है, रिक्वेस्ट. हमने और जो राइटर और उनके फैमिली ने उनको रिक्वेस्ट की कि स्टॉप और अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, कि उन्होंने बहुत टाइम मतलब ऐसा ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाया तो उसकी वजह से वो थक गई थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं की थी. नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. इट वॉज अ mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only few hours before the close of the last chapter of her life. उसके दिन दूसरे दिन क्या हुआ, दादी बीमार हो गई और उनको माइल्ड फीवर था और डॉक्टर सेड इट वुड गो, मतलब शी विड बी ओके. बट दादी को ऐसा नहीं लगता था, उनको ऐसा लगता था कि नाउ हर एंड इज नियर, मतलब अब वो मरने वाली है. और वो उन्होंने उनके मतलब मरने से पहले कुछ आवर्स पहले ही उन्होंने ये बात बोली थी. शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. उन्होंने प्रेयर लास्ट में उन्होंने क्या किया, प्रेयर करना भी छोड़ दिया और घर में सबके साथ बात करना भी छोड़ दिया था. We protest, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. दादी किसी के साथ भी बात नहीं करती थी, वो सबको इग्नोर करती थी. उसको किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता था. उन्होंने लास्ट में सबके साथ बात करना छोड़ दिया था, सबको वो इग्नोर करने लगी थी. बस क्या करती थी, अब पीसफुली मतलब सोई अपने बेड के ऊपर सोई रहती थी और उनकी जो प्रेयर थी वो बोलती रहती थी और माला जो थी उनकी बेड्स वो घुमाती रहती थी. फिर सडनली क्या हुआ कि उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो गए, मूवमेंट उनके लिप्स की स्टॉप हो गई और रोसरी उनके हैंड में से नीचे गिर गई. लाइफलेस फिंगर्स मीन्स इंसान जब मर जाता है तो उनके बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं रहती है, तो उनके फिंगर्स में से वो जो रोसरी थी वो नीचे गिर गई और उनके फेस पे एक पीसफुल मतलब एक शांति आ गई. मतलब जब भी इंसान की डेथ होती है तो वह कैसा पीसफुल उसका नेचर हो जाता है. दैट पीस केम ऑन हर फेस and writer and his family came to know that she was dead now. I lifted her off the bed and as customary laid her on the ground and covered her with the red shrug. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening we went to her room with the crude stretchers to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with the blaze of golden light. We stopped half away in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead.
and stiff wrapped in the red shrub. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirruping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some breads for them. She broke into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumb into the dustbin. उसके बाद क्या हुआ, दादी की डेथ हो गई. देन उनकी जो कस्टमरी मीन के उनकी जो रिचुअल्स थे उस हिसाब से उन्होंने दादी को थोड़ी देर रखा. उन्होंने रेड श्राउड मीन्स एक क्लॉथ होता है जिसके अंदर डेड बॉडी को लपेटा जाता है और डेड बॉडी के ऊपर उसको ढका जाता है. उनके ट्रेडिशनल के हिसाब से उन्होंने उसको ढका और फिर थोड़ी देर के लिए उनको वहीं पे उनकी जो फ्यूनरल की प्रिपरेशन के लिए उनको वहाँ पे रखा. और देन आफ्टर दे ऑल एंटर इन द रूम. और क्या कर रहे थे, फ्यूनरल के लिए जब दादी के डेड बॉडी को लेके जा रहे थे और जब वो बाहर आए तब उनके रूम में जहाँ पे दादी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे और वरांडा में क्या हुआ, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स मीन्स लार्ज बर्निंग फायर. हो, ब्लेज मीन्स लार्ज बर्निंग फायर, गोल्डन सनलाइट इतनी सारी आ रही थी जैसे वहाँ पे फायर हुई हो, फायर आग लगी हो. वैसे आग लगी हो तब कैसा गोल्डन पूरा हो जाता है, वैसा वहाँ पे सनलाइट फैली हुई थी. दे स्टॉप इन द कोर्टयार्ड फॉर अ वाइल. वो थोड़ी देर के लिए कोर्टयार्ड में रुके. जब वो वहाँ पे रुके तो बहुत सारी स्पैरोज वहाँ पे आ गई. दे स्कैटर्ड ऑन द फ्रॉम. वो फ्लोर पे यहाँ वहाँ बिखर, मतलब जो स्पैरोज थी वो यहाँ वहाँ आके बैठ गई. बट वो कोई चिरपिंग नहीं कर रहे थे. डेली जब स्पैरोज आती तो वो क्या करती थी, चिरपिंग करती थी. बट आज उन्होंने कोई चिरपिंग नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं किया. जो राइटर की मम्मी थी, मदर थी, उन्होंने क्या किया, जो दादी उनकी जो दादी थी वो कैसे ब्रेड के क्रम्स करके चिड़ियाज़ को बर्ड्स को खिलाती थी, वैसे ही सेम थिंग राइटर्स ग्रैंड मदर ऑल्सो डिड. बट जो बर्ड्स थे उन्होंने जो ब्रेड के पीसेस वहाँ पे पड़े हुए थे उसको नोटिस भी नहीं किया. एंड जैसे ही उन्होंने दादी की जो डेड बॉडी थी, जो क्रॉप था उनको डेड बॉडी को ले जाने लगे तो वो सारी चिड़िया वहाँ से विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ वो वहाँ से क्या हुआ, उड़ गई. क्वाइटली फ्लू अवे. जैसे वो खुद भी दादी को मतलब लास्ट टाइम बाय बोलने को आई हो या फिर उनको भी पता चला हो कि दादी की अब डेथ हो गई है. सो ऑल द बर्ड्स सिट वेरी क्वाइटली एंड फ्लू अवे वेरी क्वाइटली. नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, जो क्रॉप्स वहाँ पे जो ब्रेड के पीसेस वहाँ पे डाले हुए थे वो कोई एक भी चिड़िया ने वो पीसेस नहीं खाया. बिकॉज दे ऑल्सो फील सॉरी कि उनकी जो फ्रेंड थी, जो ग्रैंड मदर थी, वो डेली उनको फीड करवाती थी, अब वो नहीं रही. और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, जो स्वीपर था दैट पर्सन हैड स्वेप्ट ऑल द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. मतलब कोई भी चिड़िया ने एक भी सिंगल पीस भी वहाँ से नहीं उठाया और दूसरे दिन सारे ब्रेड के क्रम्स ऐसे ही एज इट इज़ पड़े रहे जो डस्टबिन में डाल दिए गए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी हैव completed our chapter first. Now next time we will meet with the poem. The name of the poem is Photograph. Thank you. Bye.